ढोल वजदा ओए किते चिमटा ओ मैं क्या किथे हैं हाँ जी पवाड़े जाणगे फिर पै पवाड़े लो जी पेश कर जा रहे हैं स्पेशल डिमांड पे ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਦੀਆਂ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਰਮ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਟਰੋਂਗ ਤੇ ਹੌਟ ਵੀ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੇਹਾ ਧੂਪੀਆ ਦੀ। ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿੰਟਰਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਵਿੰਟਰਸ ਦੀ ਕੀ ਯਾਦਾਂ ਨੇ? मेरे हिसाब से जो चंडीगढ़ है वो खूबसूरत शहर है, चाहे आप सर्दियों में आओ चाहे आप गर्मियों में आओ। अब मौसम ज़्यादा सुहाना हो गया है बिकॉज यू नो योर ऑब्वियसली विटनेसिंग कि इतने सारे लोग हैं हर जगह यू नो एंड सर्दी के मौसम में खाने का भी ज़्यादा मन करता है एंड देन बाहर घूमने का भी ज़्यादा मन करता है। सो इट्स ऑल इन ऑल वेरी नाइस। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਸ਼ੋਅ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੱਜ ਬਣਨਾ, ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ, ਵਾਟ ਆਰ ਯੂਰ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨਸ? I think my personal reason most probably, most in all probability, I have to be honest over here and tell you, I love being on the show. मेरे हिसाब से जितना मज़ा मुझे आता है इस शो में आने का, it's an adventure, it's a road trip, it's entertainment you can't pay money for. अगर आप पैसे भी दो कि मुझे इतना हंसना है और मेरे को कोई इतना हंसाए, it doesn't happen. मुझे इतना you know experience चाहिए. Through them you get experiences of life. You not only do, it's wrong to say कि you know I learn from contestants every day. कई लोग आते हैं अपनी problems लेके, कई लोग आते हैं अपने you know अपनी strengths लेके, कई लोग आते हैं अपनी weaknesses. At every point you learn something. और उसके बाद to be on a journey with your friends, with your gang, I think you know, and then to say कि हम काम पे जा रहे हैं, in all fairness it's a good life. ਅੱਛਾ ਨੇਹਾ, ਯੂ ਟਰੈਵਲ ਅ ਲੋਟ ਡਿਊ ਟੂ ਯੋਰ ਫਿਲਮਸ, ਡਿਊ ਟੂ ਯੋਰ ਸ਼ੋਜ਼ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯੂ ਗੈਟ ਟੂ ਮੀਟ ਲੋਟ ਆਫ ਯੰਗਸਟਰਸ, ਯੰਗ ਗਰਲਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ, ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਬੋਲਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਟਫ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਉਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਸ ਖੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਮਨ ਆਰ ਯੂ ਨੋ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਦੇਅਰ ਗ੍ਰੇਸ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਇਹ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੇ हैं? Not at all, not at all. I mean, कोई लड़की ऐसी नहीं है जो अपनी ग्रेस ढूंढे. Women are becoming themselves. जो लड़कियां हैं वो बाहर आ रही हैं, वो बता रही हैं कि हमें ये करना है, हमें वो नहीं करना जो उनसे एक्सपेक्टेड है. And just because they're doing things that they're following their head and their heart and their mind, it does not mean that they're losing their grace. It only means that they're becoming themselves. क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं बोल्डनेस के चक्कर में वो अदा, हया, नज़ाकत वो चीज़ नहीं रही लड़कियों में. इफ़ यू अग्री? I don't agree. I think अदा है, नज़ाकत है, अलग किस्म की अदा है. Just because they're strong and excuse me, just because they're strong and they're using their mind, उनमें अलग किस्म की अदा है. It's very unfair to say कि वो खो गई है because they're still gentle, they're still graceful, they're still beautiful, but in a different way. अच्छा, अगर हम मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा की बात करें तो हमारे फिल्म मेकर्स हैं वो रेपिटेडली एक ही जो कुछ लिमिटेड चेहरे हैं बॉलीवुड को उन्हें ही बार बार ले रहे हैं और ये भी होता है कि कई एक्टर्स बहुत रेपिटेटिव हो जाते हैं क्योंकि हर दूसरी फिल्म में वही चेहरे नजर आते हैं. तो व्हाट इज योर टेक टुवर्ड्स दिस अप्रोच ऑफ फिल्म मेकर्स के डू यू जस्टिफाई? Like lots of films are made on paper की एक्सेल शीट पे in corporate homes की you know इतने बजट में ये रिकवरी होगी इस हीरो की. So and then lots of films are those are projects and then there are films made which are smaller films की कहानी है, उसमें कास्ट करेंगे हम किसी को, not so much on the returns but expenditure इतना होगा, हमें अच्छे actors चाहिए. So you know it's what you're talking about is some stars are repeated and they're repeated because they have a market value. Right. और अगर किसी की market value है and a producer thinks that okay no we want to invest in this person so why not, you know. So that's the difference between making a project and a film. Right. So it's two completely different things but both work. And this is probably according to me the best time for Indian cinema की इतना चेंज आ रहा है सिनेमा में, इतने अलग किस्म की फिल्में बन रही है बट येट एट द सेम टाइम वी आर ट्राइंग टू स्टिक टू फॉर्मूला एंड देन देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट. तो जैसे कि आप सिटी ब्यूटीफुल में हैं, ऑडिशन के लिए है तो
शहर घूमने का टाइम मिलेगा आपको? जी हमें कई चीज़ें करने का वक्त तो मिल जाता है, पर हमको क्या करना है, वी नीड टू प्रायोरिटाइज। और अगर हम जब भी बाहर जाएं या ट्रैवल करें तो हम अगर खाने लगें और घूमने लगें तो देन हमें अपना भी ध्यान रखना होता है। सो बिटवीन गोइंग टू द जिम एंड देन डिसाइडिंग व्हाट वी हैव टू डू टुमारो, और अभी बाकी 3 लड़के या तो जिम में होंगे या स्ट्रैटेजाइज कर रहे होंगे, वो और कुछ करते नहीं हैं। और मेरे हिसाब से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू फोकस ऑन योर वर्क। और शहर घूमने का तो वक्त मिल ही जाएगा, बट जी हाँ, मैं चंडीगढ़ बहुत बार आ चुकी हूँ, मैं बहुत घूमी हूँ, सो आई लव दिस सिटी। अच्छा, आपके शोज़ और मूवीज़ के अलावा कल आपको डिजिटल मीडिया में वहाँ पे भी काफ़ी अप्रिशिएट किया जा रहा है। नो फिल्टर नेहा जो आपका ये शो है, कॉन्सेप्ट बहुत नया है, बहुत अनयूजुअल फैक्ट्स जो सेलिब्रिटीज़ के हैं वो लोगों के आगे आ रहे हैं। अगर सो हाउ इज़ द एक्सपीरियंस, और अगर आपके कोई एक अनयूजुअल फैक्ट या कोई सीक्रेट हो तो वो क्या होगा? वेल मेरा कोई अनयूजुअल फैक्ट या सीक्रेट नहीं है। मेरा बस ये सीक्रेट है कि आई लव माई स्लीप एंड आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज इट फॉर एनीथिंग। दैट्स द मोस्ट अनयूजुअल थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट यू नीड टू नो। जो मेरे सब दोस्त मेरे बारे में जानते हैं कि हाँ नेहा वो तो 11:30 तक सो जाती है। एंड द अदर थिंग इज़ दैट आई मीन फॉर मी माई मोस्ट अनयूजुअल थिंग इज़ दैट my most unusual thing is that लोग सोचते हैं that I'm a big extrovert but I'm not. I'm pretty introverted और मुझे लोगों से बात करना काफ़ी मुश्किल लगता है। But I'm pretty unfiltered as a person। और No Filter नेहा जो है वो मेरी पहली प्रोडक्शन है इन बिग गर्ल प्रोडक्शन, जो मेरा खुद का प्रोडक्शन हाउस है। So I'm looking forward to doing more exciting work, but right now it's roadies, so I'm excited about that। हम बिल्कुल जानते हैं कि जो आपका सेलिब्रिटी क्रश है वो रणबीर कपूर है, पर जितने भी आपके शो में सेलेब्स आए हैं, गेस्ट हैं, तो आपका फेवरेट कौन रहा और किसके साथ आपको सबसे ज़्यादा मजा आया? I think it's very unfair to say कि मेरा सबसे फेवरेट कोई था, but I am a little more biased towards करण जौहर, क्योंकि वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और उससे ज़्यादा सबसे पहले गेस्ट मेरे करण जौहर थे। So I'll always be thankful and grateful to him, and more importantly उन्होंने मुझे खुद एक वो टॉक शो करते हैं, तो मुझे उन्होंने खुद एक प्रोड्यूसर हैं, तो मैं पहली बार टॉक शो कर रही थी, पहली बार प्रोड्यूस कर रही थी। ही हेल्ड माई हैंड थ्रू इट एंड उन्होंने मेरी बहुत मदद की। सो आई हैव टू टेक हिज नेम ओवर एवरीबडी एल्सेस। सॉरी गाइस। जी जाते जाते कोई आपका फ्यूचर प्रोजेक्ट एज एन एक्टर, एज प्रोड्यूसर? आई हैव लॉट्स ऑफ स्टफ कमिंग अप, पर अब अभी रोडीज राइजिंग और रोडीज के नए सीजन पर आई लाइक टू फोकस ऑल माई एनर्जी एंड एज एंड व्हेन आई कीप डूइंग मोर वर्क वील कीप टॉकिंग। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू गाइस।